Let me now welcome Sri Shishir Jaipuria, Chairman, Seth Anandram Jaipuria Education Society for the inaugural address. Mr. Shishir Jaipuria is the Chairman of Jaipuria Group of Educational Institutions and Chairman and Managing Director of Guinea Filaments, the textile vertical of the Jaipuria Group. He is also the co-founder and the past president of ARISE, a collegium of independent schools engaged in policy advocacy. Formerly, Mr. Jaipuria has held leadership positions in several industry bodies, such as All India Organization of Employers, National Skill Development Corporation, and Confederation of Indian Textile Industry. A very warm welcome, sir. Huge round of applause, please. Good morning and namaskar. Dignitaries on the dais, faculty members, proud parents and dear students. It gives me immense pleasure and joy to welcome the batch of students for Shubh Arambh, the orientation program of MBA being held by Jaipuria Institute of Management for the year 2025-27. I am delighted to welcome our guest on stage, Mr. Kamal Bali, who is the chief guest for today's function, Mr. Alvin David, the guest of honor, and Ms. Tanvi Madan. All these three distinguished speakers who will be talking to you come with a rich background and experience in the manufacturing space, in the service industry, and in the human resources areas. And I think each one of them will give you a perspective with regard to the challenges and opportunities that are taking place in the industry. We are seeing over a period of time that there has been rapid transformations and changes in terms of skills that are required. And they'll be talking about it. They'll be also talking to you as to what are the requirements for students who have to groom themselves up and who have to meet the challenges that will be coming forth when they enter the industry. However, dear students, today is your first day in college. I want you to be comfortable. मैं चाहता हूँ कि इसको अपना घर समझें नेक्स्ट 2 साल के लिए, और आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो आज से शुरू हो गई है. एक आप लोग को अपना विजन बनाना पड़ेगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं और आप आगे बढ़ के क्या करना चाहते हैं, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आप मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं और जो आपका विजन है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें. ये ज़रूरी है कि आप हर मौके का फ़ायदा उठाएं, हर लर्निंग का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके संग दी जाएंगी और कई प्लेटफॉर्म्स क्रिएट रहेंगे जहाँ पे आप अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिल सकते हैं. यहाँ पे केस स्टडीज़ होंगे, इंडस्ट्रियल विजिट्स होंगे, और आपको बहुत मौके मिलेंगे इंटरैक्शंस के लिए और अपने को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए. तो मुझे विश्वास और उम्मीद है कि आप लोग सब उन सब मौक़ों का फ़ायदा उठाएंगे और अपने को सेल्फ डेवलप करेंगे. इंस्टीट्यूट जो है आजकल मैनेजमेंट एजुकेशन का, उसमें हर चीज़ आप लोग को पढ़ाई तो जाएगी, बट आप लोग को होलिस्टिकली डेवलप करने के लिए अलग अलग पहलुओं से और पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखनी पड़ेगी. हर नज़रिए से आप लोग को देना पड़ेगा. और मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया था कि इस साल लास्ट ईयर 300 बच्चों की कैपेसिटी हम लोग की थी इनटेक की, और अब की साल बढ़ के 360 की हो गई है. 24 साल में जो जर्नी इस कॉलेज ने किया है कि 60 बच्चों का इनटेक हुआ करता था, अब 360 पे पहुंच गए और 322 बच्चे लगभग ज्वाइन कर चुके हैं. और ये जो बच्चे आए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स की अच्छी डाइवर्सिटी है, अच्छे, और 14 डिफरेंट स्टेट से आए.
right from Kerala to the south, to Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, सब दिल्ली, सब स्टेट से बच्चे आए हुए हैं और डिफरेंट रीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप लोग आए हैं। तो एक आपस में जो आप लोग को इंटरेक्शन होगा और एक नेटवर्किंग करेंगे और बातचीत करेंगे, तो जो पीयर लर्निंग होगी आप लोग सब की, वो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ फ्रेंड्स बनाएं, एक दूसरे से नेटवर्क कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड आपके बनेंगे। मुझे याद है कि मैंने तो अपनी पढ़ाई ख़त्म की थी 1973 में, और आज भी मैं उन फ्रेंड से कनेक्टेड हूँ जो हमारे स्कूल फ्रेंड्स हैं। कई लोग हमारे दिल्ली में भी रहते हैं, उनमें से हमारा बैच तो छोटा था, 35-36 बच्चों का था, पर 5-7 जो फ्रेंड्स हमारे, चाहे वो दिल्ली में हो या बाहर में, अब्रॉड में, उन सब से हम लोग कनेक्टेड हैं आज भी। एंड जो टाइम, जो मेमोरीज हम लोग ने स्पेंड की थी उस समय, वो आज भी याद करते हैं और मिलते हैं। तो वो एक चीज़ है जो हम चाहते हैं कि एज स्टूडेंट्स वो आप लोग कल्टिवेट कर पाएँ, और जो बॉन्डिंग आप लोग को होगी वो ही एक बहुत बड़ी सीख होगी और एक वो बहुत बड़ा आपके लिए आर्मर रहेगा फॉर ग्रोथ। बिकॉज यहाँ पे एक एलुमनाई बेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 24 साल से इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में बच्चे काम करते हैं और वो प्रोफेशनल्स हो गए हैं, वो आपको गाइड कर पाएंगे, वो आपको अलग अलग दिशा में जो भी आपके इंटरेस्ट होंगे और जो आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे और जो ड्रीम्स होंगे उसमें वो आपको साझा कर पाएंगे। बट जो आपके और जो कलीग्स हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जितना आप लोग का रैपो बनेगा और अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसमें आप लोग सबको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी हैं वो सब एक दूसरे से फ्री होके अपना घर समझ के यहाँ पे रहें, और जो भी आपके इश्यूज़ हों या कोई भी कंसर्न्स हों वो अपने टीचरों के संग में, फैकल्टी मेंबर्स के साथ में, डायरेक्टर के साथ में डिस्कस करें। एंड आई होप दैट यू विल हैव अ वेरी गुड इकोसिस्टम टू लर्न एंड टू वर्क हियर, सो दैट यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण है आज की दुनिया में जो कि एवरग्रीन रहती हैं, कि आदमी को एक पर्पस होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए। डायरेक्टर ने भी बताया आप लोगों को कि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बट आपका जो इंटरेस्ट होगा, आपकी जो मेहनत होगी, अल्टीमेटली वही काम आएगी। और वो ज़रूरी है कि आप ये ना देखें कि दूसरा क्या कर रहा है, आप अपने को सेल्फ डेवलप करें इंक्रीमेंटल तरीके से। आप अपने को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जाएंगे अपने प्लान के हिसाब से, तो आप उस मकान पे पहुंच पाएंगे। आपको दूसरे से compete नहीं करना है, आपको अपने आप से compete करना है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं जब भी कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, बट आप लोग यदि फोकस्ड रहेंगे तो वो आपके लिए ज़रूरी होगा। और जिस रकम से ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग लार्जर इकोसिस्टम को, कि वर्ल्ड अफेयर्स में क्या हो रहा है, क्या नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या नई इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, और उसमें आपके तरीके से आप क्या समझते हैं कि आपको करना चाहिए, उस इकोसिस्टम के बारे में, न्यूज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, बहुत आपके कॉलेज से रिलेटेड हों या जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उसमें क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में प्रेजेंस होना, जनरेटिव एआई या जो टेक्नोलॉजीज आज के दिन आ रही हैं उसमें, या टेक्नोलॉजी के और जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कैसे आप ऑब्जर्व करें और अडेप्ट करें, ये सब चीज़ों को भी ज़्यादा महत्व उसकी होती जा रही है। यहाँ पे हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट की बहुत बात करते हैं। तो आप यदि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और नए थ्योरीज़ और जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो सीखेंगे, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी आपकी हॉबीज़ हों उसको भी कल्टीवेट करें। आज आप चाहे उस एप्पल के जो सीईओ थे स्टीव जॉब्स, उनको देख लीजिए, तो उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, और कैलीग्राफी जब मैकिन्टॉश वगैरह डेवलप हुआ तो उन्होंने जब अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में गए, R&D का जो काम किया, उसमें उन स्किल्स को जो उस समय सीखे थे और जो टैलेंट उस समय सीखे थे वो उनको काम आए। तो किसी को पैशन, कोई गेम्स का हो, कोई इंटरेस्ट का हो, तो स्ट्रैटेजी में भी काम आते हैं। किसी को ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें कि आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, जो कि आप अपने हेल्दी भी रह सकें, वेलबींग का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को
ज़रूरी है और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। इंडस्ट्री आप देखिए पिछले 300 साल से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। आप 1700-1800 में स्टीम इंजन्स की शुरू हुए, फिर मास प्रोडक्शन का शुरू हुआ जब लाइट वगैरह आई, फिर कंप्यूटर जब हम देखते थे 1970 से में जब हमें इंटर किया एजुकेशन में, तो कंप्यूटर्स बड़े तौर पे वर्ल्ड में शुरू हुए और उसमें काफ़ी चेंजेस हुए जो कि ऑटोमेशन की तरफ से और रोबोटिक्स की तरफ से बदलाव आया इंडस्ट्री में। और जब इंडस्ट्री 4.0 आया तो उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। और आज के दिन जब जनरेटिव एआई बहुत 2-2.5 साल से आ रहा है तो उसमें भी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारे ख्याल से आप लोग सब जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी और जितना आप लोग इसके बारे में जानकारी करेंगे एंड बहुत लोग इसमें चैलेंजेस भी आ रहे हैं, बट हम लोग को चैलेंज नहीं देखना चाहिए। जब भी नई कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो आदमी समझता है कि वो इतनी फास्ट चेंजेस उसमें नहीं हो पाएंगे, बट टेक्नोलॉजी जो आदमी क्रिएट करता है उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि कितना फास्ट या एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करेगी टेक्नोलॉजी। और जिस रकम से, चाहे वो इंटरनेट हो, जिस रकम से स्मार्टफोन्स हों, स्मार्ट फैक्ट्रीज़ हों, ईवीज़ हों, या जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो जाइजेंटिक प्रोपोर्शंस में ग्रो करती हैं। और ख़ास बात चैट जीपीटी या जो ई कॉमर्स की हैं, वो जितना हम लोग यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा उनको लर्निंग बेटर मिलती है एंड दे बिकम मच मोर केपेबल एंड कॉम्पिटेंट। तो जो उसमें डेफिशिएंसीज होती हैं वो धीरे धीरे और कम होती जाती है। जो उनकी लर्निंग जब इम्प्रूव होती है हमारे यूसेज से, तो वो फर्दर इवॉल्व होती हैं और हम लोग को और ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे पाती हैं। तो कॉन्स्टेंटली अपडेट रहना पड़ेगा न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और तभी हम लोग लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। मैं पर्सनली कई इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहा हूँ, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे रिटेल इंडस्ट्री हो, और अब एजुकेशन इंडस्ट्री में। इन सभी में बहुत सारा बदलाव हमको देखने को मिला है। आज आप बैंकिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री को देखिए, कितना डिस्ट्रप्शन हुआ है। रिटेल इंडस्ट्रीज जब क्विक कॉमर्स चालू हुआ तो लोग सोचे थे कि मालूम नहीं इतना पॉपुलर होगा या इतना फैसिलिटेट कर पाएगा, कन्वीनियंस दे पाएगा या प्रैक्टिकल होगा। बट आज के दिन जिस रकम से क्विक कॉमर्स सब जगह फैल रहा है और इतना कन्वीनियंस हो रहा है कि 10 मिनट में आपको हर चीज़ मिल जाती है घर पे बैठे बैठे, और जिस रकम से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हो या न्यूज़पेपर इंडस्ट्री हो या और रकम की इंडस्ट्री हो, उसमें भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है। आज जो मूवीज़ चलती थी, आज नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के आने से वो भी सब डिस्टर्ब हो गई हैं। तो हर पहलू पे टेक्नोलॉजीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व हो रहा है। मैंने जब अपना प्रारंभ किया स्कूल में, यदि 16 साल के बाद में हमारे फादर ने कहा, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री चलाते थे, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई है, पढ़ाई के साथ में आपको फैक्ट्री में आना पड़ेगा। और हम लोग को दिलचस्पी थी, जो कि फैमिली बैकग्राउंड था, कि दोनों चीज़ साथ में करना है। कि आप कॉलेज का टाइम होता था सवेरे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, और वो कहते थे उसके बाद में आप लोग फैक्ट्री में आ जाइए और फैक्ट्री में सीखिए कि क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए। तो उन्होंने 3 चीज़ बताई थी। सबसे पहले तो ये कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, टाइम ऑफिस से लेके लेबर डिपार्टमेंट से लेके R&D डिपार्टमेंट, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, अकाउंट, परचेज, हर डिपार्टमेंट में एक वीक की ट्रेनिंग होगी, जिससे कि आप हर डिपार्टमेंट के जो इश्यूज़ और न्यूएंसेस हैं वो समझ सकें। तो दैट वाज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब आप कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ को आप बेसिक लेवल पे सीखें। तो उसका एक जो एक्सपोजर मिला और अंडरस्टैंडिंग मिली, तो दैट गोज़ थ्रू आउट योर लाइफ। दूसरा उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग जब काम करो, और हम लोग यंग थे, 16-17 साल के, हम और हमारे ब्रदर, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये जो फैक्ट्रियां हैं 24 घंटे 365 दिन चलती है, तो आप रात की शिफ्ट में भी जाइए और देखिए कि वहाँ पे किस रकम से काम होता है। क्योंकि कई बार ये चैलेंजेस आते हैं कि रात के शिफ्ट में जो सुपरविजन होता है या मैनेजरियल जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती।
तो आप सवेरे तो जाइए, पर शाम को भी कभी याद सरप्राइज विजिट्स कीजिए, जो कि आप देख सकें क्या इंडस्ट्री में चल रहा है। उसके अलावा आप वीकेंड में भी कभी जाइए, जो कि संडे को क्या हो रहा है या वीकेंड में क्या हो रहा है, और अपने वर्कर्स की हेल्थ को भी देखिए और उनकी एफिशिएंसी को भी देखिए। तो वो चीज़ें जो सीखने को मिलती है यंग एज में, वो आपको प्रिपेयर करती है फॉर एक्सीजेंसी, वो आपको प्रिपेयर करती है फॉर रेजिलियंस। और तीसरी चीज़ उन्होंने जब बताया, उन्होंने कहा कि जो भी काम करो उसको शाम तक जितनी फाइल्स आपके पास आए उसको उसी दिन आप जहाँ तक हो कंप्लीट करके जाओ, और उसको नेक्स्ट डे मत रहो, नहीं तो रात को आपको बैगेज रहेगा, वो उसी आप सोचते रहोगे और आप आगे की सोच नहीं पाओगे। तो जितना जहाँ तक हो सके जो भी आपके पास काम है उसको कंप्लीट करके आप जाएंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे, और घर में आप अपना टाइम बच्चों के संग और फैमिली के संग भी रह पाएंगे। आजकल बहुत बातें चलती है वर्क लाइफ बैलेंस की। तो देखिए, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, चैलेंजिंग टाइम्स है, बट हम लोग को अपना टाइम एक बैलेंस भी मेंटेन करना ज़रूरी है, जो कि हम अपने लाइफ को एक हैप्पी लाइफ कर सकें, कंटेंटेड लाइफ हो सके, और सेटिस्फैक्शन हमको मिले जो भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, और हर इंडस्ट्री और हर कंज्यूमर और हर आदमी सेंसिटिव है कि इसको हम कैसे इंश्योर करें कि जो चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। आज दिल्ली में ही आप देख लीजिए, जब पोल्यूशन होता है तो ऐसी बुरी हालत हो जाती है कि पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। आज प्लास्टिक वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के पहाड़ लग जाते हैं, जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिक्स के बारे में हमको जानकारी है। और वेदर्स आज चाहे यूरोप में देख लीजिए, इतनी गर्मी पड़ने लग गई है कि लोग रह नहीं पा रहे हैं। तो ये सब जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो कॉर्पोरेट्स को बहुत बारीकी से देखते हैं, और वो चाहते हैं कि हम लोग उस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें जो कि एनवायरनमेंटल फ्रेंडली हो। तो इस एस्पेक्ट को भी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जितने लोग आप लोग आज स्टेप कर रहे हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इसको ध्यान दें। और पर्सनल लेवल पे हर इंडिविजुअल को ये देखना चाहिए कि हम अपने कंजम्पशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। यद्यपि चॉइसेस बहुत हैं आदमी के हाथ में, हर आदमी को ये होता है कि मुझे अबंडेंस चाहिए, बट वी हैव टू बी सेलेक्टिव इन आवर चॉइसेस एंड रिस्ट्रिक्ट आवर कंजम्पशन। दूसरी बात यह है कि हम लोग को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम लोग वेस्ट कमती से कमती जनरेट करें, और जो भी चीज़ यूज़ करें उसको फुल्ली यूटिलाइज़ करें और मिनिमाइज़ करें वेस्ट को, और जहाँ तक हो सके रिसाइकिल कर सकें प्रोडक्ट्स को। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में और सर्विस इंडस्ट्री सभी में हो रहा है कि हमको अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट्स हमको प्लैनेट को भी देखना है, हमको अपने पीपल को भी देखना है। तो वही कंपनी अच्छी चल पाएगी जो तीनों चीज़ों को ध्यान से देखेगी और उसके लिए आगे बढ़ेगी। तो मैं ये सब बातें आप लोगों को बता रहा हूँ सो दैट जो बेसिक चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री वाले एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी देना चाहता था। तीसरा ये है कि जो आज के दिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो रही है वो बहुत चैलेंजिंग हो रही है। हम देख रहे हैं कि आज जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को देख रहे हैं एज अ कंट्री विच इज़ चैलेंजिंग देम। जिस रकम से हमारी यूथ है, जिस रकम से हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, नए नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं, तो वी आर बीइंग चैलेंज्ड, चाहे वो टैरिफ्स के रूप में हो चाहे और रकम के रूप में है। तो हमारा गवर्नमेंट का विजन है कि हम लोग विकसित भारत कैसे बन सके, 2047 तक हम $32 ट्रिलियन की इकानमी कैसे बन सकें, और हम लोग क्या क्या कर सकें जिसमें हम सेल्फ रिलायंट हो सकें। तो जो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम वीक थे, चाहे वो डिफेंस की तरफ से हम लोग ने देखा अभी जब हम लोग को डिफेंस फोर्सेस ने किस रकम से काम किया जब पाकिस्तान के साथ में इश्यूज़ हुए, चाहे और रकम की जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें हम लोग को बढ़ावा गवर्नमेंट भी दे रही है, और हम लोग को भी ये विजन होना चाहिए कि इन टेक्नोलॉजीज़ को कैसे हम अडेप्ट कर सकें और हम लोग फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहें।
आज यहीं के जो बच्चे हैं, यहीं के यूथ हैं, यहाँ पढ़ के IIT और IIM से डेवलप कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ सक्सेसफुल हो जाते हैं और वहाँ पे मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट का भी थिंकिंग है और हम लोग का भी ये एक विजन होना चाहिए कि जो हमने सीखा है वो हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकें और हम लोग अपने कंट्री को कैसे बढ़ा सकें, जो कि हमारा कंट्री किसी कंट्री के प्रेशर में नहीं आके कोई डिसीजन ले। तो ये एक तीसरा मुद्दा है जो कि हम लोग को आगे चल के देखना चाहिए। और इस टाइप के यदि थ्रेट्स आते हैं तो हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हम लोग ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं कि एक चीज़ हम कोई तरीके से कर रहे हैं तो ये तरीका अच्छा है, तो हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स या डिफरेंट रूट्स को नहीं देखते हैं। आज जब इंडिया चैलेंज हो रहा है इन सब चीज़ों में, तो वो अपने को दोबारा इस नज़रिया से देख रहा है कि भाई हमारा इक्वेशन एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो के 4 कंट्रीज़ में होने चाहिए, हमारे सब प्रोडक्ट्स एक बास्केट में नहीं हो के 4 डिफरेंट बास्केट में होने चाहिए। यदि कहीं से कोई डिस्रप्शन हुआ तो मेरे को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग को आएंगे तो वो आपको ऑल्टरनेटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएंगे, ऑल्टरनेटिव डिसीजन मेकिंग के लिए ले जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एप्टीट्यूड है या एटीट्यूड है वो कंटिन्यूसली आपका शार्पन होता जाएगा। तो ये इन सब चीज़ें को आप लोग को सिखाया जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, उनसे आप लोग को गाइडेंस मिलेगी। बट मैं ये विश करता हूँ कि आपकी जो जर्नी हो, जो 2-1.5 साल का जो सफ़र है यहाँ पे, वो बहुत अच्छा रहे, आपको सेटिस्फैक्ट्री हो, आपके जो ड्रीम्स को है उसको कुछ एक्सटेंड तक हम लोग उसको मीट कर सकें। और आप लोग जितना उसमें कोऑपरेट करेंगे, जितना आप लोग काम करेंगे, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द यूथ ऑफ द कंट्री एंड इन ऑल ऑफ यू, and I wish you all the best. Thank you indeed.